سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے ہی روز علی الصبا محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ راجہ طاہر ککسا آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم فوراً خیمے سے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا اور ککسا کے استقبال کے لیے خیمہ گاہ سے آگے نکل گیا۔ شبان صفی اس کے محافظوں کو ساتھ لے کر اس کے پیچھے گیا۔ ککسا گھوڑے سے اتر آیا۔ اسے پوری تعظیم دینے کے لیے محمد بن قاسم بھی گھوڑے سے اتر کر اور آگے جا کر ککسا سے ملا۔ ترجمان ساتھ تھا۔ کیا آپ راجہ طاہر کے چچا زاد بھائی ہیں؟ محمد بن قاسم نے ککسا سے پوچھا۔ میں اس پر فخر تو نہیں کر سکتا کہ میں راجہ طاہر کا چچا زاد بھائی ہوں، ککسا نے کہا، لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اس سے بہت مختلف ہوں۔ مختلف سے مراد یہ نہیں کہ وہ بہت دلیر تھا جس نے آپ کی اطاعت قبول کی اور میں بزدل ہوں کہ بغیر لڑے آپ کی اطاعت قبول کر رہا ہوں۔ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا اور اسے اپنے خیمے میں لے آیا۔ ککسا کے ساتھ جب محمد بن قاسم کی باتیں ہوئیں تو انکشاف ہوا کہ ککسا دانشور اور فلسفی ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کی اطاعت باقاعدہ طور پر قبول کر لی، صرف یہ شرط پیش کی کہ باتیا شہر کے لوگوں کو امن و امان میں رکھا جائے اور انہیں تجارت، عبادات اور شہریت کا پورا حق دیا جائے۔ محمد بن قاسم ککسا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا مشیر بنا لیا۔ ان علاقوں کے کئی ایک معاملات اور امور ایسے تھے جن کے لیے کسی مقامی مشیر کی ضرورت تھی۔ مشیر کا دانشمند اور صاحب اثر و رسوخ ہونا بھی ضروری تھا۔ ککسا سے بہتر اور کوئی مشیر نہیں ہو سکتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے خزانے کا وزیر بھی بنا دیا اور اس پر اتنا اعتماد کیا کہ اسے مشیر مبارک کا خطاب دیا۔ باتیا کو محمد بن قاسم نے ایک مضبوط فوجی اڈا بنا دیا اور اپنی اگلی منزل کے تعین میں مصروف ہو گیا۔ اس منصوبہ بندی میں کسکا کے مشورے بہت مفید ثابت ہوئے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی منزل اسکند ہوگی۔ بعض تاریخوں میں اسے عقل مند بھی لکھا گیا تھا۔ یہ اس زمانے کا مشہور اور خاصا بڑا شہر تھا۔ ایک روز رانی لاڈی محمد بن قاسم کے پاس آئی اور اس نے ایسی درخواست کی جس نے محمد بن قاسم کو سوچ میں مبتلا کر دیا، جس سے کسکا نے اطاعت قبول کی اور محمد بن قاسم اس کے شہر میں داخل ہوا تھا۔ رانی لاڈی پہلی بار محمد بن قاسم کے پاس آئی تھی۔ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ کسکا نہیں لڑے گا؟ رانی لاڈی نے کہا، میں اسے جانتی تھی کہ حالات کو سمجھ کر فیصلہ کرنے والا آدمی ہے۔ اگر یہ شخص لڑنے کی حماقت کرتا تو اسے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر کسکا قلعے کے دفاع میں لڑتا تو میں اسے لڑنے سے روک سکتی تھی۔ لاڈی نے کہا، اس پر میرا اتنا اثر ہے کہ میں اس سے اپنی بات منوا سکتی ہوں۔ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کی وفاداری اور اس کی دانشمندی کی کتنی قیمت ادا کی ہے۔ کیا تم کسکا سے مل چکی ہو؟ نہیں، رانی لاڈی نے جواب دیا، آپ کی اجازت کے بغیر میں ایسے کسی آدمی سے نہیں ملتی۔ تم اس سے مل سکتی ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں یہی اجازت لینے آئی ہوں، رانی لاڈی نے کہا۔ میں اسے صرف ملنا ہی نہیں چاہتی بلکہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ اس نے خطرہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ دونوں مل کر کوئی سازش نہ کر لیں۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ رانی لاڈی نے پوچھا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں اس سے ملوں۔ آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا شک یا وہم ہے تو وہ دل سے نکال دیں۔ ککسا کے ساتھ اس کے خاندان کی عورتیں ہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ اگر آپ مجھے اپنا قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ککسا کے ساتھ میرا رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہاں لاڈی، محمد بن قاسم نے اپنی سوچ سے بیدار ہو کر کہا، جاؤ میں تمہیں ککسا کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ رانی لاڈی ککسا کے پاس چلی گئی۔ اسی شام شبان صفی محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ ابن قاسم، اس نے محمد بن قاسم سے کہا، اس عورت کو ککسا کے پاس بھیج کر تم نے اپنے لیے خطرہ پیدا کر لیا ہے۔ تم میرے سپاہ سالار اور سندھ کے امیر ہی نہیں ہو، میں تمہیں اپنا بیٹا بھی سمجھتا ہوں۔ تم بڑے ہی قابل اور جرأت مند سالار ہو سکتے ہو، لیکن نوجوانی کی اس عمر میں جذبات کبھی عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ میں نے جنگی امور میں کبھی دخل اندازی نہیں کی اور میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میرے معاملات میں دخل دو۔
तुम्हारी हिफाजत मेरा मामला है। क्या तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो? ये लोग इकट्ठे होकर खतरा पैदा कर सकते हैं। शुबान सक्वी ने जवाब दिया, ये एक ही मजहब के लोग हैं और तुमने इन्हें तख्तो ताज से महरूम करके अपने साए में बिठा लिया है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि ये तुम्हारे वफादार रहकर तुम्हारी इस मुहिम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या मुझे अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए? नहीं इब्ने कासम, शुबान सक्वी ने जवाब दिया, फैसला वापस लेना तुम्हारी शान के खिलाफ है। इसका इलाज मेरे पास मौजूद है। मैं इन लोगों में एक दो जासूस छोड़ दूंगा जो इनके जान पहचान वाले मुकामी आदमी होंगे। मोहम्मद बिन कासम ने बातिया का शहरी इंतजाम रवा कर दिया था और अब लश्कर अस्कंद की तरफ कूच के लिए तैयार खड़ा था। पहले कहा जा चुका है कि इस दौर के कई शहर और कस्बे सफा हस्ती से मिट चुके हैं, इसलिए फासलों का तयन करना मुमकिन नहीं। आज अस्कंद भी मौजूद नहीं। मुजमल और तवारीख में ये इशारा मिलता है कि अस्कंद किले तक पहुंचने के लिए दरियाए ब्यास अबूर करना पड़ा था। लश्कर के कूच से पहले हरादिल दस्ता रवाना हुआ करता था, जिसे मुकदमतुल जेश कहते थे। अब लश्कर के कूच से पहले जो हरादिल दस्ता मुंतहिब किया गया, इसके साथ जाने के लिए कक्सा ने अपने आप को पेश किया। वो इन इलाकों से वाकिफ था, इसलिए मोहम्मद बिन कासम ने उसी को इस दस्ते की कमान दे दी और इसके साथ अपना एक सलार जायदा बिन अमीर ताइब भेजा। कक्सा बड़ा अच्छा रहनुमा साबित हुआ। कई रोज बाद जब वो दरियाए ब्यास के किनारे इस मुकाम पर पहुंचा जहां से दरिया अबूर करना था, उसने मुकामी माही गिरों से कश्तियां ले लीं। जब मोहम्मद बिन कासम अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा तो हरादिल दस्ता कश्तियों को रस्सों से बांध चुका था। अब इन कश्तियों को एक पुल के तौर पर दरिया में डालना था। लश्कर जो ही पहुंचा, रस्सों से बंधी हुई कश्तियों को दरिया में डाल दिया गया और कश्तियों का पुल बनाने वाले आदमी दरिया के पार चले गए और रस से दूसरे किनारे पर बांध आए। इधर लश्कर दरिया अबूर कर रहा था, उधर किले में ये खबर हवा की तरह फिर गई कि मुसलमानों की फौज आ गई है। किला बंद शहर में नफसा नफसी और अफरा तफरी बपा हो गई। इस किले में पहले ये खबर पहुंची थी कि अरब की फौज तूफान की तरह आ रही है और इसके आगे किले घास फूस की झोंपड़ियों की तरह उड़ रहे हैं। किले का हाकिम सहरा था, जो जिद का बड़ा ही पका और खतरनाक हद तक तुलेर आदमी था। उसने अपनी फौज और शहर के लोगों को हरासा नहीं होने दिया था। शहर के चंद एक सरकर्दा आदमी सहरा के पास गए और उससे कहा कि उन्होंने किले की दीवार पर जाकर मुसलमानों के लश्कर को देखना है और ये लश्कर बहुत ज्यादा है। तुम लोग चाहते क्या हो? सहरा ने उनसे पूछा, और तुम खौफो हिरास से मरे क्यों जा रहे हो? हम अपने बच्चों और अपने माल की सलामती चाहते हैं। एक आदमी ने कहा, अगर आप समझते हैं कि हमारी फौज किले को नहीं बचा सकेगी तो मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दें। हमने सुना है कि मुसलमान सिर्फ जजिया लेते हैं और शहर के किसी फर्द पर हाथ नहीं डालते और ये लूट मार भी नहीं करते। अरब की फौज बड़ी जबरदस्त फौज है महाराज। एक और आदमी ने कहा, शहर पर पत्थर और आग बरसाती है। उसने दीबल और अरोड़ के किले सर कर लिए हैं। हम इसका मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? बुज़दिल मत बनो और मेरी बात सुनो। सहरा ने कहा, अरबों की इस फौज को दानिस्ता आगे आने का मौका दिया गया है। इस फौज के हाकिमों और सिपाहियों के दिमागों में ये यकीन बैठ गया है कि इनका मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती। राजा दाहिर ने कहा है कि ये अरबी मुसलमान सहरा में दूर अंदर तक आ जाएंगे तो इनकी नफरी कम हो चुकी होगी और इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। उस वक्त हम इन पर जवाबी हमला करेंगे। ये भागने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हम इनके सिपा सलार मोहम्मद बिन कासम को और तमाम फौज को जिंदा पकड़ेंगे। फिर घर घर में एक एक मुसलमान गुलाम होगा। इनके घोड़े और ऊंट हमारे काम आएंगे। अब वो इस जगह आ गए हैं जहां राजा दाहिर इन्हें लाना चाहता था। ये हमारा फर्ज है उन्हें पसपाई के काबिल न छोड़ें। हम इनकी वापसी के रास्ते बंद कर देंगे और इन्हें दरिया के पार नहीं जाने देंगे। क्या आप इनके फेंके हुए पत्थरों और आग के तीरों को रोक लेंगे? एक आदमी ने सहरा से पूछा, क्या हमारी फौज के तीर अंदाज मर गए हैं? सहरा ने कहा, क्या हमारे सवारों के घोड़े मर गए हैं? हमारे सवार किले के बाहर जाकर इन पर ऐसे जबरदस्त हमले करेंगे कि इन्हें पत्थर और आग वाले तीर फेंकने की मोहलत ही नहीं देंगे। बुज़दिल न बनो। शहर के लोगों को तैयार करो कि इनमें जो तीर अंदाज हैं वो किले की दीवार पर चले जाएं और जो घोड़सवार और तेजजान या निजाबाज हैं वो फौज के सवारों के पास चले जाएं। सुना है राजा दाहिर मारा जा चुका है। शहर के एक सरकर्दा आदमी ने कहा, ये झूठ है। सहरा ने गुस्से से गरज कर कहा, राजा दाहिर हिंदुस्तान से फौज इकट्ठी कर रहा है, वो पहुंच जाएगा। सहरा ने शहर के लोगों को ऐसा गरमाया कि वो अपनी फौज के दोष बदोश लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए। बड़े मंदिर के पंडितों ने लोगों को देवियों और देवताओं के कहर से डराया। फौजी और शहरी एक हो गए। इन्हें फतह नजर आने लगी। मोहम्मद बिन कासम के लश्कर ने दरिया अबूर कर लिया। कक्सा के कहने पर उन माहीगीरों को जिनकी कश्तियां पुल के लिए इस्तेमाल की गई थीं, बेदरेग मुआवजा दिया गया। मोहम्मद बिन कासम ने उन्हें अनाज भी दिया।
किले को जब मुहासरे में लिया गया तो शहर की दीवारों से पत्थरों की बुछाड़ें आने लगी। कक्सा घोड़े पर सवार किले के इस दरवाजे के सामने चला गया जिसके ऊपर दीवार पर सहरा खड़ा था। सहेरा, कक्सा ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे पहचानो, मैं दाहिर का चचाजाद भाई कक्सा हूँ। तुम इन लुटेरों के साथ यहाँ क्या लेने आए हो? सुहेरा ने पूछा। क्या तुम दादा परदादा का धर्म बेच बैठे हो? दरवाजा खोल दो, कक्सा ने कहा। अंदर आकर तुम्हें बताऊंगा मैं इनके साथ क्यों आया हूँ। ये दरवाजा सिर्फ राजा दाहिर के लिए खुलेगा, सहेरा ने कहा। राजा दाहिर नहीं आएगा, कक्सा ने कहा। वो मारा जा चुका है, उसका सर अरब चला गया था। उसकी रानी लाडी मेरे साथ है। रानी लाडी बहुत पीछे थी। कक्सा ने इशारा किया तो वो घोड़े पर सवार होकर कक्सा के पास जा रुकी। उसने चेहरा चादर में छुपा रखा था। मुझे देख सहेरा, रानी लाडी ने चेहरे से चादर हटाकर कहा। तुमने मुझे देखा हुआ है। राजा दाहिर जिंदा होता तो मैं मुसलमानों के साथ ना होती। किले के दरवाजे खोल दो, कक्सा की तरह तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तुम किले के हाकिम रहोगे। शहर की गलियों को अपनी फौज और लोगों के खून से धोने की कोशिश मत करो, कक्सा ने कहा। भयानक अंजाम से बचो। देखो मैं इन मुसलमानों की फौज का हाकिम हूँ। अगर राजा दाहिर इन अरबों के हाथों मारा गया है तो उसके खून का बदला लेंगे। सहेरा ने कहा, आगे आओ और किले के दरवाजे खुद खोलने की कोशिश करो। तुमने अपनी गैरत देखकर इन अरबों से रुतबा लिया है। बेशतर इसके के 2 तीर तेरी आंखों में उतर जाएं, यहाँ से हट जाओ। ये वही मंजर था जो अरोड़ के मुहासरे में उस वक्त पैदा हुआ था जब रानी लाडी ने किले के करीब जाकर ऐलान किया था कि राजा दाहिर जिंदा नहीं है। अरोड़ वालों ने उस पर तंज और दशनाम तराजी के तीर बरसाए थे। अब अस्कंदर के मुहासरे में किले की दीवारों से कक्सा और रानी लाडी पर वैसी ही लान तान बरसने लगी। राजा दाहिर को कत्ल करने वाला अभी जिंदा नहीं हुआ। राजा दाहिर को कत्ल करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। दीवार के ऊपर से एक आवाज आई, अगर दाहिर कत्ल हो ही गया है तो उसे तुम दोनों ने कत्ल कराया है। ये आवाज सहेरा की थी। हम राजा दाहिर के कत्ल का इंतकाम लेंगे। कक्सा, एक और आवाज आई, हमारे पास आ जाओ, डाकुओं की इस कौम के धोखे में ना रहो। कक्सा मोहम्मद बिन कासिम के आगे बढ़कर कहा, रानी लाडी, इनके नाम तो वो पुकार सकता था, इससे आगे वो मुकामी जुबान नहीं बोल सकता था। इसने तर्जुमान से कहा, इन दोनों को वापस बुला लो। अरोड़ वालों की तरह इनकी किस्मत पर भी मोहर लग गई है। दोनों वापस आ गए।